Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 31st of August 2022, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. I have also started my UPSC mentorship program in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing a static part related to every current affair in detail. If you are interested and want to join this program, for that you need to visit the Telegram group and the link of the Telegram group is in the description box. फर्स्ट न्यूज़ हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सप्लेन पेज पर भी आई है तो एक बार वहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे. सेकेंड न्यूज़ है यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस ऑल बोर्ड्स रेगुलेटर फॉर एग्जाम असेसमेंट. The union government plans to draw up a benchmark framework to assess students at the secondary and higher secondary level to bring about uniformity across state and central boards, जो कि अभी डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ इवेल्युएशन को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से हमें वाइड डिस्पैरिटीज इन स्कोर्स भी देखने को मिलते हैं. इसीलिए यूनियन गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि एक बेंचमार्क फ्रेमवर्क बनाया जाए स्टूडेंट्स को असेस करने के लिए एट द सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल, जिसकी वजह से यूनिफॉर्मिटी आ सके. Over the last few months, NCERT has held a series of meetings with the representatives of state boards and state councils of educational research and training to arrive at a common understanding कि इस प्लान को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, as part of which a new assessment regulator is being set up. Proposed regulator का क्या नाम होगा? परख, Performance Assessment Review and Analysis of Knowledge for Holistic Development, that is परख, which will act as a constituent unit of the NCERT, जो कि NCERT की एक constituent unit की तरह act करेगा. It will also be tasked with holding periodic learning outcome जैसे कि National Achievement Survey, State Achievement Surveys. The benchmark assessment framework will seek to put an end to the emphasis on rote learning. तो बेसिकली यहाँ पर रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होगी, as envisaged by the National Education Policy 2020. परख Proposed Implementing Agency NEP proposal का ही पार्ट है. It is learned that during the discussion most states endorse the NEP proposal की बोर्ड एग्जाम एक साल में 2 बार होने चाहिए और यहाँ पर स्टूडेंट्स को एक चांस भी देना चाहिए कि वो अपने स्कोर्स को इम्प्रूव कर सकें. स्टेट्स आर ऑल्सो ऑन बोर्ड रिगार्डिंग अ प्रपोजल टू ऑफर 2 टाइप्स ऑफ पेपर्स ऑन मैथमेटिक्स. एक स्टैंडर्ड एग्जाम होना चाहिए और दूसरा यहाँ पर हायर लेवल कॉम्पिटेंसी को चेक करने के लिए. तो परख ही आपको पता होना चाहिए कि परख क्या है. Earlier this month, the center invited bids to establish Parakh, which it said will be setting norms, standard, guidelines की स्टूडेंट का असेसमेंट यहाँ पर कौन से नॉर्म्स के बेसिस पर होगा, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए. तो बेसिकली यहाँ पर जो वाइड डिस्पैरिटीज़ हैं वो ना हो सके और यहाँ पर एक यूनिफॉर्मिटी आ सके. The ministry official said Parakh will help tackle the problem of students of some state boards being at disadvantage during college admissions. जब यहाँ पर CBSE स्कूल्स और यहाँ पर स्टेट बोर्ड्स की बात आती है तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ पर स्टेट बोर्ड्स के बच्चे डिसएडवांटेज पोजीशन में ना रहें. तो परख विल हेल्प टैकल द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सम स्टेट बोर्ड्स बीइंग एट अ डिसएडवांटेज ड्यूरिंग कॉलेज एडमिशन. Expression of interest floated by the center also spells out that Parakh will undertake the sample based national achievement survey. इसके अलावा स्टेट अचीवमेंट सर्वे इसके लिए गाइड करेगा, मॉनिटर करेगा अचीवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स इन द कंट्री, और अगर प्लान्स एकदम ट्रैक पर रहे तो जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 का होगा उसको कंडक्ट करेगा परख. Parakh will eventually become the national single window source for all assessment related information and expertise with a mandate to support learning assessment in all forms nationally और जहाँ पर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर इंटरनेशनली भी. अब हम चलते हैं आगे. CGI led bench to hear EWS quota reservation for Muslims in Andhra. अब यहाँ पर 2 केसेस हैं जिनको कि हेयर किया जाएगा. A 5-judge constitution bench of the Supreme Court headed by Chief Justice of India UU Lalit will take up 2 pleas. अब पहली प्ली है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द 103rd Amendment Act 2019, जहाँ से 10% कोटा इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. दूसरा इशू है जो कि 2005 से पेंडिंग है. तो मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दिया गया था आंध्र प्रदेश में एज अ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास. अब क्वेश्चन ये है कि क्या रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन दिया जा सकता है, तो इन दोनों के ऊपर होगी यहाँ पर हेयरिंग. तो सेकंड इशू है इट पर्टेन्स टू reservation given to Muslims in Andhra Pradesh as a socially and economically backward class and raises question of religion based reservation. अब यहाँ पर सेंटर से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सेंटर को ये कहा है कि आपके पास 3 वीक्स है अपना स्टैंड को प्लेस करने के लिए. कौन से इशू पर? कि कोटा फॉर कन्वर्टेड दलित्स.
The Supreme Court on Tuesday gave the center 3 weeks to place its stand on a plea seeking extension of quota benefits to people from Dalit communities, जो कि यहाँ पर इस्लाम में कन्वर्ट होते हैं, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होते हैं, तो उनको भी यहाँ पर कोटा बेनिफिट मिलना चाहिए। क्योंकि जो 1950 का ऑर्डर है जिसको कि अमेंड किया गया था, उसमें सिर्फ हिंदूज, बुद्धिस्ट और सिख्स, इनमें ही शेड्यूल कास्ट को कंसिडर किया जाता है और उसके अलावा यहाँ पर कोटा नहीं मिलता है क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में। तो बेसिकली इसमें ये कहा गया है कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पर सेंटर के स्टैंड को पूछा गया है, तो सेंटर जब अपना स्टैंड क्लियर कर देगा उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर कोई कन्वर्ट होता है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में, तो उसके बाद वो यहाँ पर कोटा एंजॉय नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ बॉर्डर विल डिसाइड स्टेट ऑफ इंडिया चाइना टाइज। तो हमारे चाइना के साथ कैसे रिलेशंस रहेंगे वो इस बात के ऊपर डिपेंड होगा कि बॉर्डर इशू क्या है। External Affairs Minister S. Jaishankar has said that the state of the border will determine the state of the India-China relationship. He also said that for ties to return to a positive trajectory and remain sustainable, they must be based on 3 mutuals: mutual sensitivity, mutual respect, and mutual interest. For a start, sovereignty और territorial integrity को यहाँ पर रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, जो कि चाइना नहीं करता है। फिर यहाँ पर ये कहा गया कि एशियन सेंचुरी के लिए ज़रूरी है कि सारे कंट्री अपना कॉन्ट्राडिक्शंस भूल कर साथ में आए, लेकिन यहाँ पर चाइना तो वो करता नहीं है। इट इज़ सेड दैट द प्री रिक्विजिट फॉर एन एशियन सेंचुरी इज एन इंडिया एंड चाइना कमिंग टुगेदर, कन्वर्सली देयर इनएबिलिटी टू डू सो विल अंडरमाइन इट। यहाँ पर एक टर्म मेंशन था मोडस विवेंडी। यहाँ पर एक टर्म मेंशन था मोडस विवेंडी, जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है कि सामने वाले के साथ आपके कुछ और इंटरेस्ट हो, सामने वाले कंट्री के साथ कुछ और इंटरेस्ट हो, लेकिन उसके बाद भी आपको बिना डिसएग्री किए जो भी म्यूचुअल एडवांटेजियस टर्म्स है उसके ऊपर आपको बात करनी चाहिए। तो ये बात चाइना को समझनी चाहिए, लेकिन चाइना को ये बात समझ में नहीं आ रही है। अब हम चलते हैं आगे। ला नीना कंडीशंस एंटर थर्ड ईयर। तो इंडियन मानसून के लिए तो ला नीना कंडीशंस बहुत अच्छी होती हैं। ला नीना इज व्हेन द सी सरफेस टेम्परेचर्स अलोंग द सेंट्रल एंड इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन आर कोल्डर देन नॉर्मल। When sea surface temperatures along the central and equatorial Pacific Ocean are colder than normal, which experts say favors the Indian summer monsoon. लेकिन जो ला नीना ईयर्स होते हैं उन साल बेसिकली यहाँ पर इंटेंस हरिकेन्स और साइक्लोन्स भी आते हैं इन द अटलांटिक ओशियन एंड द बे ऑफ बंगाल। ला नीना का ऑपोजिट होता है एल नीनो। इसका मतलब होता है वार्मर सी सरफेस टेम्परेचर्स दैट्स प्रिवेल ओवर दीज रीजन्स। ला नीना फेवर्स अ हायर रेट ऑफ साइक्लोन फॉर्मेशन इन द बे ऑफ बंगाल, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं आगे। द अडानी टाटा मॉडल। अब इस आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन 1-2 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि अब हमें कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन या हॉरिजॉन्टल कंट्रोल देखने को मिल रहा है। अब इस मॉडल में क्या होता है? A business group leverages its entrepreneurial reputation to enter into as many industries. For example, अडानी आपको पोर्ट्स में मिल जाएंगे, एयरपोर्ट्स में, कोल माइनिंग में, ट्रेडिंग में, थर्मल पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, नेचुरल गैस सप्लाई, रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब इतने सारे सेक्टर्स में ये जो भी सेक्टर्स मेंशन है, फर्टिलाइजर, मीडिया, ग्रीड हैंडलिंग, फ्रूट मार्केटिंग, रोड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स। तो हॉरिजॉन्टल कंट्रोल इज कंट्रास्टेड विद व्हाट इन बिजनेस लिटरेचर इज कॉल्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि अगर यहाँ पर एक बिजनेस के ऊपर फोकस किया जा रहा है तो उसकी सारी बैकवर्ड लिंकेजेस, फॉरवर्ड लिंकेजेस, सब कुछ उस बिजनेस के ऊपर ही फोकस किया जा रहा है, तो उसको यहाँ पर बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। वेयर फर्म्स रिमेन फोकस्ड ऑन देयर एग्जिस्टिंग बिजनेसेस वाइल फोर्जिंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस अक्रॉस द प्रोडक्शन वैल्यू चेन। तो ये यहाँ पर ऑथर ने डिफरेंस बताया है कि आज हमें क्या चेंज देखने को मिल रहा है। क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है? तो क्रोनी कैपिटलिज्म बेसिकली यहाँ पर जो कॉरपोरेट्स होते हैं और जो गवर्नमेंट होती है उनके बीच में जो साठगांठ होती है कि ठीक है आप यहाँ पर हमें इलेक्शन के लिए फंड प्रोवाइड करो तो हम आपके हाईवेज़ के टेंडर पास कर देंगे। तो ये सब जो होता है इट इज़ क्रोनी कैपिटलिज्म। तो बेसिकली नेक्सस बिटवीन द पॉलिटिशियंस एंड द कॉरपोरेट। नेक्स्ट है द सेम कैलामिटी। तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डेवास्टेटिंग फ्लड आ रखी है, तो इंडिया ने भी यहाँ पर कहा है कि हम भी असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे टू द पाकिस्तान। तो इन द past too, the humanitarian impulse to reach out to a neighbor in crisis has moved Delhi and Islamabad to keep their geopolitical rivalry in abeyance. तो पाकिस्तान ने हमें असिस्टेंस प्रोवाइड की थी गुजरात अर्थक्वेक ऑफ 2001 के बाद। इंडिया ने भी पाकिस्तान को बहुत बड़ा असिस्टेंस प्रोवाइड की है। इस टाइम भी हम यहाँ पर पाकिस्तान को असिस्टेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। अब हो सकता है कि पाकिस्तान में ये जो फ्लड्स आए हैं उसका एक रीज़न ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज भी है एक रीज़न। The southwest monsoon that brings the bulk of India's annual rainfall
causes rain in Pakistan as well. The melting glaciers in the Himalayas do not respect बॉर्डर्स। और यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान दोनों नेगोशिएशंस की जब बात करते हैं UNFCCC फोरम में, तो वहाँ पर दोनों ही कंट्रीज़ का ये कहना होता है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू चेक क्लाइमेट चेंज, उन्हें यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना चाहिए, फंड ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो ऑथर ने बेसिकली यही कहा है, जैसे आसियान का इनिशिएटिव है ना कि वो लोग साथ में मिलकर कि हम स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट बनाया कि हमारा ये पूरा रहना चाहिए, ये प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए क्लाइमेट चेंज को लेकर, तो वैसा ही यहाँ पर साउथ एशियन कॉन्टिनेंट में भी होना चाहिए। तो डेटा शेयरिंग मैकेनिज्म्स ऑन रिवर फ्लोज, फ्लड अलर्ट सिस्टम, इवन अ कॉमन रिन्यूएबल एनर्जी डोमिनेटेड इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, तो ये सब साउथ एशिया में भी हो सकता है। तो उसकी वजह से जो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी है पीपल इन साउथ एशिया की, वो यहाँ पर कम होगी। डिस्ट्रेस ऑफ वल्नरेबल, अभी कैसे पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस है? तो मनरेगा में जॉब की डिमांड लगातार इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर मनरेगा में जॉब की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब ये है कि लोगों को और कोई ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। फिर उसके बाद हमें ये पता चला है कि डेली वेजेस में जो सुसाइड रेट है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है। लोग अपने पॉलिसीज़ को ज़्यादा सरेंडर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है, इसीलिए तो लोग अपने यहाँ पर पॉलिसीज़ को सरेंडर कर रहे हैं। तो ये सब यहाँ पर ऑथर ने बताया। तो बिगर पिक्चर ये है कि रिकवरी हो रही है, लेकिन रिकवरी यहाँ पर यूनिफॉर्म तरीके से नहीं हो रही है। तो द बिगर पिक्चर दैट एमर्जेस इज वन ऑफ पेन एट द लोअर एंड मिडिल लेवल ऑफ इनकम distribution. As policymakers navigate the tumultuous global macroeconomic environment, they must be mindful of the highly uneven nature of the recovery and take measures to address the distress of the most vulnerable. Next है the podium finish। तो यहाँ पर एक स्कीम की बात की गई है, टॉप स्कीम टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम दैट वाज इंस्टीट्यूटेड बाय द करंट एनडीए गवर्नमेंट इन 2014। फॉर एग्जांपल, कंसिडरेबल फंड्स वर इन्वेस्टेड इन नर्चरिंग एथलीट्स इन द रन अप टू द टोक्यो ओलंपिक्स। दिस प्रोवाइडेड देम अ बूस्ट। अब हम चलते हैं आगे, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर जो ट्विन टावर्स का डिमोलिशन था तो उसके बारे में बताया गया है, अ सिनेमैटिक डिमोलिशन। नेक्स्ट है स्पाईवेयर फ्रॉम नोवेयर। The Pegasus project was a collaborative effort embarked upon by 17 international media organizations। और उन्होंने ये बताया कि 50,000 ये कुछ फ़ोन नंबर हैं जिनको कि टारगेट किया गया था बाय द पेगासस स्पाईवेयर। ठीक है, पेगासस स्पाईवेयर को बनाया है स्पाईवेयर मेकर एनएसओ ग्रुप ने। क्लेम दैट पेगासस वाज सोल्ड ओनली टू लॉ इन्फोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज ऑफ नेशन स्टेट्स, ताकि वो यहाँ पर टेररिज्म को कॉम्बैट कर सके और क्राइम को यहाँ पर ख़त्म कर सकें। वाइल कंट्रीज़ लाइक फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड एंड हंगरी एडमिटेड कि उन्होंने इसको खरीदा है, लेकिन यूएस ने ये कहा कि उन्होंने डेमोस्ट्रेशन तो देखा था पर उन्होंने कभी बाय नहीं किया। अब इंडिया ने बाय किया है नहीं किया है ये क्लियर अभी तक हो नहीं पाया है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, अब उस कमेटी के साथ गवर्नमेंट ने कोऑपरेट नहीं किया। तो ऑथर का ये कहना है कि गवर्नमेंट ने कोऑपरेट नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मीकली एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पर जो रिपोर्ट है उसको सील्ड कवर में लिया, यहाँ तक कि रिपोर्ट को प्रेजेंट भी नहीं किया लोगों के सामने। तो वी डू नॉट नो विच ऑफ दीज इज ट्रू बिकॉज इट इज़ केप्ट अंडर अ सील्ड कवर बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर द एक्सक्यूज़ दैट अगर हम इसको ओपन में रखेंगे तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर हमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बताया। अभी भी हमारे पास डेटा प्रिवेसी बिल नहीं है, उसको विड्रॉ कर लिया गया है और यहाँ पर प्रिवेसी का वॉयलेशन लगातार हो रहा है। अब हम चलते हैं आगे, न्यूक्लियर प्लांट इन वॉर जोन। तो बेसिकली यहाँ पर ज़ैपोरिज़िया की बात की गई है, बहुत टाइम से ज़ैपोरिज़िया की बात चल रही है। अगर रिएक्टर्स हिट हो जाते हैं तो क्या हो सकता है? तो मॉडर्न न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर बिल्ट टू विदस्टैंड कंसिडरेबल शॉक एंड इम्पैक्ट। और यहाँ पर ये अर्थक्वेक भी झेल सकते हैं ऑफ मैग्नीट्यूड 8 और हायर सॉरी। दे आर ऑल्सो डिज़ाइन टू शट डाउन ऑटोमेटिकली जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेजर नेचुरल हज़ार्ड आता है। Cooling systems are extremely crucial to the safe operation of nuclear reactors which have to handle temperatures in the range of 1000 of degree Celsius। For example, यहाँ पर बात की गई है फ्यूकुशिमा डिजास्टर ऑफ 2011 की। तो यहाँ पर जो फ्यूकुशिमा डिजास्टर हुआ था 2011 का, तो रिएक्टर्स वर नॉट डैमेज्ड बाय द मैसिव अर्थक्वेक एंड सुनामी, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो गए थे। इनफैक्ट दे ऑटोमेटिकली शट डाउन देयर ऑपरेशंस एज डिजाइंड, बट द रेगुलर पावर सप्लाई एज वेल एज द बैकअप जनरेटर्स हैड फेल्ड ड्यू टू रेन स्टॉर्म एंड फ्लडिंग, जिसकी वजह से जो कूलिंग सिस्टम था वो पूरी तरीके से नॉन फंक्शनल हो गया। और कूलिंग सिस्टम नॉन फंक्शनल हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि रिएक्टर मेल्ट करना स्टार्ट हो जाएगा और रिएक्टर यहाँ पर एक्सप्लोड भी हो सकता है और जिसकी वजह से न्यूक्लियर रेडिएशन का अनकंट्रोल्ड रिलीज होगा। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर बात की गई है मेथाम्फेटामाइन, जिसको मेथ भी कहते हैं। इट इज़ अ पावरफुल हाईली एडिक्टिव स्टिमुलेंट दैट अफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसको ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसके अलावा एक स्लीप डिसऑर्डर नार्कोलेप्सी को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है।
Next, refusing to allow Ganesh Utsav at the Bengaluru Eidgah, the Supreme Court on Tuesday directed the Karnataka government कि आपको यहाँ पर स्टेटस को इशू के ऊपर मेंटेन करना है और वहाँ पर गणेश उत्सव नहीं सेलिब्रेट किया जाएगा। वक्फ प्रॉपर्टी क्या होता है? द वक्फ एक्ट डिफाइंस वक्फ एज अ परमानेंट डेडिकेशन बाय अ पर्सन जो कि इस्लाम को प्रोफेस करता है ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एनी पर्पस जो भी यहाँ पर मुस्लिम लॉ में रिकॉग्नाइज किया गया है एज पायस, रिलीजियस और चैरिटेबल। अब कर्नाटका में हमें बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा कम्युनल इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, कम्युनली पोलराइजिंग इंसिडेंट्स, फॉर एग्जांपल हिजाब कंट्रोवर्सी, इसके अलावा बैनिंग ऑफ मुस्लिम्स एट टेम्पल फेयर्स, और यहाँ पर वोट को कंसोलिडेट करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा यहाँ पर ऑथर ने बताया है। What happens to the case now? After the Supreme Court ruling, the Ganesh Utsav can't be celebrated on the Eidgah premises this year, but the larger question of the use of the land remains. The single judge bench of the Karnataka High Court will continue to hear the case on the title of the Eidgah. फिर यहाँ पर बात की गई है इंडियन नेवीज इनसाइन। तो अभी आपको ये जो इनसाइन दिख रहा है ना, इसमें आपको ये सेंट जॉर्ज का क्रॉस दिख रहा है जो कि कॉलोनियल एरा की निशानी है। तो अब ये हो जाएगा चेंज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल अनवील द न्यू नेवल इनसाइन फॉर द इंडियन नेवी इन कोची ऑन September 2 ऑन द साइडलाइंस ऑफ द कमिशनिंग ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। तो यहाँ पर कमिशनिंग होगी इंडिया के फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। द न्यू नेवल इनसाइन विच द PM विल अनवील इन कोची विल रिप्लेस द प्रेजेंट इनसाइन विच कैरीज द सेंट जॉर्ज क्रॉस विद द ट्राई कलर इन द कैंटन। तो ये आपको दिख रहा है ना, ये जो क्रॉस है ये सेंट जॉर्ज का क्रॉस है। अब ये जो सेंट जॉर्ज है ये कौन थे? द रेड क्रॉस ऑन अ वाइट बैकग्राउंड इज नोन एज द सेंट जॉर्ज क्रॉस एंड इज नेम्ड आफ्टर अ क्रिश्चियन वॉरियर सेंट हु इज बिलीव्ड टू हैव बीन अ क्रूसेडर ड्यूरिंग द थर्ड क्रूसेड। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्लैग अडॉप्ट किया गया था बाय द इंग्लैंड एंड द सिटी ऑफ लंडन इन 1190 टू आइडेंटिफाई इंग्लिश शिप्स जब वो यहाँ पर मेडिटेरेनियन में एंटर करती थी। ठीक है। 2014 में यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए थे इन साइन में। फॉर एग्जांपल सत्यमेव जयते यहाँ पर ऐड कर दिया गया था। इट वर इंक्लूडेड इन द फ्लैग बिलो द अशोका एम्बलम इन द देवनागरी स्क्रिप्ट। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडियन डिफेंस फोर्सेस कंटिन्यूड विद कॉलोनियल एरा फ्लैग्स एंड बैजेस। इट वॉज ओनली ऑन January 26, 1950 कि नेवी क्रेस्ट एंड फ्लैग वर चेंज, बट द ओनली चेंज यहाँ पर किया गया वो यहाँ पर यूनियन जैक को ट्राई कलर से रिप्लेस किया गया, लेकिन यहाँ पर जो जॉर्ज का क्रॉस था वो वैसे ही रिटेन रखा गया। अब पता नहीं है कि नया डिज़ाइन कैसा है, लेकिन अभी क्योंकि उसको अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है। नेक्स्ट अब चलते हैं आगे। जॉइन अस टू स्टॉप लंका फ्रॉम बीइंग यूज्ड एज इंटरफेरेंस टूल। तो बेसिकली इन्होंने ऐसा इसीलिए कहा है रनिल विक्रमसिंघे ने, क्योंकि यहाँ पर चाइना और इंडिया के बीच में स्पार ऑफ वर्ड्स हो गया था युआन वांग 5 को लेकर। नेक्स्ट है 1 man dies and an entire uncontacted tribe vanishes in Brazil। अब यहाँ पर ट्राइब का नाम तो नहीं दिया है कि क्या ट्राइब का नाम है। अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स कौन सी होती हैं? अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स आर ग्रुप्स दैट लिव विदाउट सस्टेन्ड कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो बेसिकली जिनका सस्टेन्ड कॉन्टैक्ट नहीं होता है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ उनको ही कहते हैं अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स। लास्ट मैन ऑफ द ट्राइब इन रोंडोनिया वेस्टर्न ब्राज़ील। तो ये लोकेशन रोंडोनिया कहाँ पर है ये एक पूछा जा सकता है। इसके अलावा तनारू इंडिजीनियस टेरिटरी इन द स्टेट ऑफ रोंडोनिया बॉर्डरिंग बोलीविया। फिर यहाँ पर ये बताया गया है कि इंडिजीनियस ग्रुप्स और कंजर्वेशन लैंड के लिए जो प्रोटेक्शन है वो यहाँ पर खत्म हो रही है ब्राज़ील में, जिसकी वजह से यहाँ पर अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब एक्सटिंक्ट हो रही हैं। ही इज़ ऑल्सो स्लैश्ड फेडरल फंड्स एंड स्टाफिंग। इसके अलावा वीकनिंग द एजेंसीज जो कि यहाँ पर इंडिजीनियस और एनवायरमेंटल लॉस को इन्फोर्स करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स खत्म हो रही हैं। नेक्स्ट है डेटा गैदरिंग बाय पब्लिक एजेंसीज पिक्स अप इवन एज लॉ हैंग्स फायर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर Customs Department mandating airlines to share personal details of international flights, Civil Aviation Ministry's facial recognition system Digi Yatra, MeetI's proposal to share non-personal data collected by the government with startups and researchers, certain का mandate कि यहाँ पर virtual private network service providers को data user का रखना पड़ेगा। These are among a rising number of moves जो कि central government कर रहे हैं data collect करने के लिए, लेकिन हमारे पास अभी भी कोई भी data protection bill नहीं है। तो experts have raised concerns over this trend, questioning the government's efforts of data collection and monetization in the absence of a basic data protection regime. Earlier this month, the center withdrew the Data Protection Bill 2021, saying that it will soon come out with a comprehensive legal framework for the online ecosystem. अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने रीच किया। तो फर्स्ट पेज पर हमने परख रीच किया है जो कि एक प्रपोज रेगुलेटर है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट जो कि एक कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट हो गया NCERT की, और यहाँ पर इसको टास्क दिया जाएगा कि पीरियोडिक लर्निंग आउटकम टेस्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल नेशनल अचीवमेंट सर्वे, स्टेट अचीवमेंट सर्वे। तो ये सब आपको पता होना चाहिए।
फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पर रीड किया कि यहाँ पर 2 प्लीज़ को सुना जाएगा। पहला तो ये है 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 विच इंट्रोड्यूस द प्रोविजन फॉर अ 10% कोटा फॉर EWS एंड द सेकेंड वन इज़ जो यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है मुस्लिम्स को इन आंध्र प्रदेश एज अ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। फिर यहाँ पर सेकेंड इशू सेंटर से जवाब मांगा गया है कि सेंटर का क्या स्टैंड है कि जो दलित कन्वर्ट हो जाते हैं क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में, क्या उनको यहाँ पर कोटा का बेनिफिट्स मिलना चाहिए। और बाकी हमारे चाइना के साथ रिलेशंस इस बात पर डिपेंड करते हैं कि हमारे चाइना के साथ बॉर्डर इशू कैसा है। ला नीना कंडीशंस, तो ला नीना में क्या होता है, जो सी सरफेस टेम्परेचर्स होता है अलोंग द सेंट्रल एंड इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन वो यहाँ पर कोल्डर होता है देन नॉर्मल। और ला नीना जो ईयर्स हैं दे आर ऑल्सो इन फेमस फॉर फ्रीक्वेंट इन इंटेंस हरिकेन्स एंड साइक्लोन्स इन द अटलांटिक ओशन एंड द बे ऑफ बंगाल। और एल नीनो इसका पूरी तरीके से उल्टा होता है। द सेम कैलामिटी, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं तो इसको हम वापस रीड नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर इनसाइन, तो यहाँ पर नया इनसाइन होगा, अब क्या होगा वो अभी तक पता नहीं है हमें। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।